Namaste dentists, welcome back to the channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist. We have already explored the major connectors, both maxillary and mandibular, and now we are on to the next key element of the removable partial denture, and that is minor connectors. In this video, we are going to be breaking down what is minor connector, their functions, their classifications, and how they tie all entire framework together. So let's start the video. First, what is minor connector? It is the connecting link between the remaining component of the removable partial dentures to the major connector. So इसका काम क्या है कि बाकी सारे component जो भी हमने पढ़े हैं वो सारे component को major connector के साथ connect करना ही minor connector का काम है. Function क्या है? Apart from joining all the components to the major connector, its function is to transfer all the functional stress, जो भी function के through masticatory stresses आते हैं, to transfer all the functional stresses to the abutment teeth. और इसको हम in short बोल सकते हैं prosthesis से लेके abutment function, जिसमें जो भी functional stresses जो prosthesis के through सारा का सारा transfer करना to the abutment teeth. And the next one is to transfer the effect of retainers, rest and stabilizing component through the prosthesis. इसको कह सकते हैं abutment to the prosthesis. तो जो भी component हमारे abutment tooth पे होंगे उनके through ये prosthesis वो सारा equal distribution of the force करता है. So इसके तीन function. First major function जो कि हमने पढ़ा, what is minor connector? Its function is to join all the components of removable partial denture to the major connector. Second function, to transfer the functional stresses to the abutment teeth, and the third function to transfer all the components effect from the prosthesis from the abutment to the prosthesis so that uska equalization of forces ho sake. Next, what are the design considerations? First, it should be sufficient, it should have sufficient bulk ताकि ये रिजिड रह सके. अ माइनर कनेक्टर शुड बी रिजिड, सेम जो हमने मेजर कनेक्टर में भी पढ़ा था. सेकेंड, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन द इम्ब्रेजर्स. ठीक है, दो दांत के बीच में जो इम्ब्रेजर बनता है, दिस शुड बी प्रेजेंट इन द इम्ब्रेजर टू डिस्गाइज देयर बल्क, ताकि जो हमारा बल्क हमने इसको दिया है रिजिड बनाने के लिए, वो बल्क इस इम्ब्रेजर इस जगह के अंदर चला जाए और उससे पेशेंट को कंफर्ट प्रमोट कर सके. थर्ड, इट शुड नेवर बी पोजिशन्ड ऑन एनी कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द टूथ. जहां पे भी कॉन्वेक्सिटी होगी टूथ की वहां पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए. अदरवाइज एनीवेज टूथ की कन्वेक्सिटी है और उसके ऊपर भी अगर हम माइनर कनेक्टर का बल्क रख देंगे, दैट विल बी वेरी एविडेंट, वेरी इरिटेंट टू द पेशेंट. नेक्स्ट, इट शुड फॉर्म अ राइट एंगल टू द मेजर कनेक्टर. अब ये माइनर कनेक्टर जब मेजर कनेक्टर से कनेक्ट होगा, इट शुड कनेक्ट एट राइट एंगल, बट ये राइट एंगल भी इट शुड बी जेंटली कर्व्ड, ताकि ये कर्वेचर क्यों दिया जाता है? टू मिनिमाइज द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट दिस जंक्शन. सो ये हो गया. एंड देन नेक्स्ट इज इट शुड बी ब्रॉड buccolingually and mesiodistally is to facilitate the easier placement of the prosthetic tooth. ठीक है. टाइप्स क्या क्या होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज माइनर कनेक्टर, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइनर कनेक्टर, देन व्हाट आर द डिजाइन कंसिडरेशंस, एंड देन यू नीड टू नो द टाइप्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ माइनर कनेक्टर. माइनर कनेक्टर का काम क्या है? टू जॉइन ऑल द कंपोनेंट्स विद द मेजर कनेक्टर. सो फर्स्ट in the classification is the minor connector that joins the clasp assembly to the major connector. तो यहाँ arrow लगा हुआ है, that is the minor connector, जो कि बाकी के जो major connector से join कर रहा है clasp assembly को. Second is ये जो arrows लगे हुए हैं वो हमारे minor connector है, that is connecting or joining the indirect retainer to the auxiliary rest or the auxiliary rest to the major connector. Third, जो कि denture base को मेजर कनेक्टर से ज्वाइन कर रहा है. एंड फोर्थ इज द वन विच इज एक्टिंग एज एन अप्रोच आर्म फॉर द वर्टिकल प्रोजेक्शन और बार टाइप क्लास. ये आपको जब मैं डायरेक्ट रिटेनर बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द क्लास्प असेंबली टू द मेजर कनेक्टर. तो या तो ये जो माइनर कनेक्टर है या
ये प्रॉक्सिमल प्लेट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो जब भी ये जो क्लास्प असेंबली है वो एक इडेंचुलस स्पेस के एडजेसेंट यूज की जाए, तो इस क्लास्प असेंबली को जब मेजर कनेक्टर से ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे जो माइनर कनेक्टर यूज होता है उसको प्रॉक्सिमल प्लेट माइनर कनेक्टर कहते हैं। और यहीं पे अगर एडजेसेंट उसका इडेंचुलस स्पेस नहीं है और टूथ प्रेजेंट है तो लिंगुअल एम्ब्रेजर, जो कि हमने अभी डिजाइन कंसंट्रेशन पढ़ा, लिंगुअल एम्ब्रेजर के थ्रू ये माइनर कनेक्टर जाएगा और इस क्लास्प असेंबली को मेजर कनेक्टर के साथ जोड़ेगा। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा क्लास्प असेंबली ज्वाइन करता है मेजर कनेक्टर को, वो दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये क्लास्प असेंबली एडजेसेंट हो किसी इडेंचुलर स्पेस के तो वो प्रॉक्सिमल प्लेट के जैसे जाएगा माइनर कनेक्टर, या फिर इडेंचुलर स्पेस नहीं है उसके बाजू में दांत प्रेजेंट है तो लिंगुअल एम्ब्रेजर्स को यूज करते जाएगा ताकि उसके बल्ब को डिस्गाइज कर सके। और दैट्स हाउ क्लास्प असेंबली को ज्वाइन करता माइनर कनेक्टर मेजर कनेक्टर से। नेक्स्ट इज व्हेन दैट काइंड ऑफ माइनर कनेक्टर विच joins the indirect retainer or auxiliary rest to the major connector। तो ये क्या होते हैं, या तो लिंगुअल एम्ब्रेजर से जाएंगे या तो दूसरे तरह के जो लिंगुअल सरफेस पे जाता है, ये मोस्टली मैक्सिलरी एंटीरियर्स पे ही रहता है। एंटीरियर्स में क्या होता है कि दिस गोज to till the cingulum and that rest there in the lingual rest seats। ये जब रेस्ट सीट्स पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आएगा कि लिंगुअल रेस्ट सीट क्या होता है। तो इसमें भी दो सिनारियोज हमने देख लिए जहां पे इनडायरेक्ट रिटेनर और ऑक्सिलरी रेस्ट को मेजर कनेक्टर से ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे माइनर कनेक्टर या तो लिंगुअल एम्ब्रेजर से होते हुए जाएंगे या फिर लिंगुअल सरफेस से। दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली हैपेंस इन द मैक्सिलरी इन द लिंगुअल रेस्ट सीट्स। थर्ड वन, जब डेंचर बेस को मेजर कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। अब डेंचर बेस में तीन तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक ओपन कंस्ट्रक्शन, एक होता है मेश कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज द बीड वायर और नेल हेड काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द माइनर कनेक्टर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ माइनर कनेक्टर, बट नो, इट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर एक वन ऑफ द पार्ट है जिसमें कि माइनर कनेक्टर डेंचर बेस को मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज ओपन कंस्ट्रक्शन। इसमें जो अपर वाला, दिस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रट्स एंड द ट्रांसफर्ड स्ट्रट्स, और इसी तरह से लैडर लाइक नेटवर्क बनाता है। इसमें एक जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रट होता है बकली प्रेजेंट होता है, दूसरा वाला लिंगुअली प्रेजेंट होता है, और जो लिंगुअल और बकल स्ट्रट्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रट्स, वो कभी भी क्रेस्ट पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमने क्रेस्ट पे डाल दिया, प्लेस कर दिया, तो इट विल इंटरफेयर विद द प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ और इसके कारण डेंचर बेस फ्रैक्चर भी होने के चांसेस होते हैं। ये बात हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रट्स की। अब जो ट्रांसवर्स स्ट्रट्स हैं, दैट शुड बी डिजाइंड टू पास थ्रू द नेक ऑफ द आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा और कितनी दांत वहां पे फिक्स आर्टिफिशियल टीथ वहां पे सेट करने वाले हैं। अब इसकी वजह से दैट एड्स इन द टूथ अरेंजमेंट और एज वेल एज द एस्थेटिक्स। ठीक है, सो दिस कंस्टिट्यूट योर होल ओपन कंस्ट्रक्शन। दिस is used when multiple teeth are to be replaced। कहाँ पे हम open construction type of minor connector use करेंगे? When multiple teeth are to be replaced। Second, it provides strongest attachment of the resin to the removable partial denture framework, and it facilitates relining and rebasing of the removable partial dentures। So these are some of the important points which you need to keep in the mind with respect to open construction kind of minor connectors। The next one is the mesh construction। mesh construction में ढेर सारे क्रिस क्रॉस चैनल्स बने होते हैं। ये चैनल अलाउ करते हैं रेजिन इंसर्कलमेंट। अब ये हमने माइनर कनेक्टर मेटल का बना दिया, अब इसके ऊपर हमें एक्रिलिक रेजिन मिक्स करके डालना है, तो उसके अंदर से फ्लो भी अच्छे से होना चाहिए। सो ये चैनल अलाउ करते हैं एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बनाने का बिटवीन द माइनर कनेक्टर एंड द डेंचर बेस। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अच्छे से अगर हमें पास कराना है रेजिन्स को इन चैनल्स के थ्रू तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो पूरा अच्छे से इंटरलॉकिंग नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। अब इसके अंदर
बोथ इन द ओपन कंस्ट्रक्शन एज वेल इन द मेश कंस्ट्रक्शन, इसमें इसके नीचे माइनर कनेक्टर के नीचे एक रिलीफ वैक्स लगाई जाती है जिसको रिलीफ दिया जाता है। उस रिलीफ के कारण वो रिलीफ वैक्स जब हटेगा तो उसी स्पेस को यूज किया जाता है जहां पे रेजिन फ्लो कराया जाता है। ठीक है, सो ऑल द रिलीफ एंड द बॉर्डर एक्सटेंशन आर सेम एज दैट ऑफ द ओपन कंस्ट्रक्शन। ड्रॉबैक क्या है कि बहुत डिफिकल्टी होती है पैकिंग करने में, जो कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर लगाने के कारण कई बार उसका पोजीशन चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। सेकेंड, इट इंटरफेयर्स विद द टीथ अरेंजमेंट। जैसे प्रॉपरली जो ट्रांसफर स्ट्रट्स बने थे ओपन कंस्ट्रक्शन में, उससे बहुत एस्थेटिक वो बन रहा था और बहुत ही प्रॉपर स्पेस दे रहा था, रिस्टोरेटिव स्पेस। लेकिन ये चीज, रिस्टोरेटिव स्पेस भी कम है इसमें और इंटरफेरेंस भी क्रिएट करता है टूथ अरेंजमेंट में। एंड वही, अब अगर कोई भी स्ट्रट क्रॉस नहीं कर रहा है और अगर हम इसके ऊपर टूथ अरेंजमेंट कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज द एस्थेटिक ऑफ द प्रोस्थेसिस एज वेल। नेक्स्ट इज द बीड वायर और नेल हेड। ठीक है, ये जो होते हैं, दिस काइंड ऑफ माइनर कनेक्टर आर यूज्ड विद द मेटल डेंचर बेस। मेटल डेंचर बेस, जो कि मेटल डेंचर बेस के नीचे कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये अगेन एक एमसीक्यू हो सकता है कि किस तरह के माइनर कनेक्टर के नीचे कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करते। ये जाके सीधा का सीधा सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर फिट होता है, डायरेक्टली फिट होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड करते हैं। एंड रेजिन, अब रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सब में मैंने बताया था रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके नीचे भी हम रेजिन फ्लो कर सके। लेकिन बीड वायर एंड नेल हेड में स्पेस नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस के कारण रेजिन्स जो हैं वो वहां पे मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं। सो दिस इज अटैच्ड टू द फ्री सरफेस ऑफ द बेस एंड द रिटेंशन इज गेन्ड बाय इनकम्पासिंग द सरफेस प्रोजेक्शंस। आई होप इट इज क्लियर। ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं उसके ऊपर हम एक्रिलिक फ्लो करते हैं और वो मैकेनिकली इंटरलॉक करता है। एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव हाइजीन होगा क्योंकि इसके नीचे स्पेस नहीं है और मेटल का बना हुआ है और जो कि डायरेक्टली सॉफ्ट टिश्यू से टच में है, तो इनहांस करता है थर्मल स्टिमुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। डिसएडवांटेज है, इट इज डिफिकल्ट इन एडजस्टिंग एंड रीलाइनिंग बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू रीलाइन बिलो दिस। सो रीलाइनिंग में मुश्किल होती है। यूज कहाँ है? यूज सिर्फ लिमिटेड होता है शॉर्ट स्पैन टूथ सपोर्टेड रिमूवल पार्शियल डेंचर्स में जिसके वेल हील्ड रिजेस हो। द रिजेस शुड नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीलिंग अभी बची थी और हमने एकदम अडेप्ट करता हुआ उसमें बीड वायर नेल हेड दे दिया हो। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। This should strong enough to anchor a denture base to removable partial denture, rigid enough होना चाहिए to resist the fracture and displacement, and minimal interference with the arrangement of artificial teeth. These are the ideal requirements of the kind of minor connector जो कि denture base को major connectors के साथ connect करते हैं, and relief must be provided beneath the open and the mesh construction. ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा कि उसके नीचे कोई रिलीफ नहीं होता है। अब इनमें तीन और चीजें हमें पढ़ने वाली है। फर्स्ट इज कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है दिस काइंड ऑफ माइनर कनेक्टर का। सेकंड, कास्ट टॉप्स कहाँ होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। एंड थर्ड इज द फिनिश लाइन। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में ये जो इस तरह के माइनर कनेक्टर होते हैं, मैक्सिलरी वाले में थ्रू आउट हम पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं एंड दिस द डेंचर बेस एक्सटेंड्स ऑन द टॉप ऑफ द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एज वेल। तो उस तरह से पूरे में करते हैं। बट इन द मैंडिबुलर वन द माइनर कनेक्टर ओनली covers 2/3 of the length of the edentulous span. ये distal extension major spaces की बात हो रही है। In the maxillary it covers the whole thing till the maxillary tuberosity, but in the mandibular it covers only 2/3 of the edentulous span. Okay, this is the extension. Then the cast top in the distal extension cases, अब क्या होता है कि अगर मान लो टूथ सपोर्टेड है जहां पे आगे भी टूथ प्रेजेंट है पीछे भी टूथ प्रेजेंट है, तब तो हमने रेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया है जो कि उसका वर्टिकल मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा। लेकिन एडेंचुलस जो डिस्टल एक्सटेंशन केसेस होते हैं, जो कैनेडीज क्लास 1 एंड 2, जिसमें पीछे कोई भी
अबटमेंट टूथ प्रेजेंट नहीं है, उन केसेस में वहां पे बेंडिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उसी एक सरफेस जो फ्री एंड ऑफ द डिस्टल एक्सटेंशन केस है, उसमें बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे कास्ट टॉप्स लगाए जाते हैं, जो कि स्मॉल स्क्वायर एरियाज होते हैं 2 × 2 millimeters। यहाँ पे एरो बना हुआ है। This is placed at the free end of the minor connector where posterior struts of the minor connector crosses the center of the ridge। इस लाइन का हर एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कि ये डिस्टल एक्सटेंशन केसेस में होता है, प्रिवेंट करता है बेंडिंग को, स्क्वायर एरिया होता है जो कि 2 × 2 millimeter का होता है, फ्री एंड ऑफ द माइनर कनेक्टर पे होता है, पोस्टीरियर स्ट्रट ऑफ द माइनर कनेक्टर पे होता है, और कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द रिज पे बनाया जाता है। सो एवरीथिंग अबाउट दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। और इसको अगर रिवर्स उसके टिश्यू सरफेस से देखें तो इट इज काइंड ऑफ एन एलिवेशन, और यही जो एलिवेशन है ये एक रिलीफ जो इक्वल अमाउंट ऑफ एक्रिलिक फ्लो को फैसिलिटेट करेगा। दिस इज कास्ट टॉप एंड देन इज फिनिश लाइन। अब यहाँ पे जब हम रेजिन फ्लो करेंगे तो देयर विल बी सम एरियाज जो कि जहाँ पे रेजिन जाके मेटल के साथ भी कॉन्टैक्ट करेगा। उसी इंटरफेस को, जो रेजिन और मेटल इंटरफेस होता है, उसी इंटरफेस को कहते हैं फिनिश लाइंस। तो देयर आर समथिंग विच आर इंटरनल फिनिश लाइन, जो कि आप देख सकते हो, जो कि 90 डिग्री होता है, जिसको बट जॉइंट भी कहते हैं, 90 डिग्रीज। एंड देयर इज something which is called as external finish line in the external part of the removable partial denture, so that should be always less than 90 degrees। ठीक है, so this is the finish line। These are the three extension, cast top and the finish line, three things which you need to keep in mind in order to understand the minor connectors जो कि denture base को connect करते हैं major connectors के साथ। So this is the most important part of the minor connector। And the last type of the minor connector which serves as an approach arm for the vertical projection। अब ये आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम डायरेक्ट रिटेनर पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझ जाओ कि दिस इज द ओनली नॉन रिजिड टाइप ऑफ माइनर कनेक्टर। हमने आइडियल जो डिजाइन कंसिडरेशन था उसमें पढ़ा था कि दिस शुड बी रिजिड इनफ, अदरवाइज ये किसी एक टूथ पे सारा फोर्सेस एक्यूमुलेट करेगा और फिर उसमें ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट होने लगेंगे। बट दिस इज द ओनली नॉन रिजिड टाइप ऑफ माइनर कनेक्टर। सो ये एक एमसीक्यू आ सकता है। इट अप्रोचेस, अब क्या है दूसरी मेजर थिंग, बाकी सारे जो माइनर कनेक्टर थे वो ऑक्लूजल एरिया से अप्रोच कर रहे थे अबटमेंट टूथ को, बट इस ये जो माइनर कनेक्टर होता है, दिस अप्रोचेस द टूथ फ्रॉम द अपाइकल डायरेक्शन। This should display smooth, even taper from its origin to its terminus। So this concludes our minor connector। This is a very small topic, but it is very important to understand the designing of removable partial denture। So I hope you have understood this topic clearly। We'll come up with the next video very soon. Till then, happy studying।